my question is, a bat emits ultrasonic wave of frequency 3 kilohertz if its speed is 350 meter per second and the bat hears its echo after 0.6 after emitting the waves. How far is the bat from the speaker and what is the wavelength of the wave? In this question, we have find two things. One is the wavelength and the another is how far is the bat from the obstacle. That is the distance. And in this question, two things are given. Three terms are given. First is frequency of the waves, that is 30 kilohertz, and the speed of the sound and the echo which is heard by the bats in 0.6 second after emitting the waves. So, first of all, we will write here whatever is given in the question. The frequency of the wave is given. Frequency is denoted by F or mu or N. So frequency F is given 30 kilohertz. 30 kilohertz. And we know that the unit of the frequency is hertz only, not kilohertz. So we will change here kilo by the hertz. So 30 and you know 1 kilo means 10 to the power 3 and this is the hertz. We can also write this term 3 into 10 to the power 4 hertz. This is the frequency. And the speed of the sound is given speed V equal to given 350 meter per second. V is given, F is given, so we can easily find the wavelength. And another thing is given time. Time for here is the echo. Time for echo. ये echo के लिए टाइम दे रखा है, that is 0.6 second. To find out the distance from bat to the obstacle, we know that formula by using formula. What is the formula for echo? For echo, we have derived an equation which was B equal to V into T by 2. This was the relation between the distance, the speed of the sound and the time for echo. D equal to V into T by 2. Now putting the value of V and time T, we get V. What is the V? 350 meter per second. And time is given 0.6 second and divided by 2. When we divide 0.6 by 2, then we will get 0.3. This is second to the power minus 1 and this is 1. This will cancel out and only the unit of the distance will be obtained meter. So D equal to, this is 350 and this is 0.3 and the unit of the distance is meter. Now multiplying by 3 in 350. We get 0, 3 5 15, carry 1, 3 3 9 or 1, 9 and 10, 9 1 and 1 10. The decimal point will be placed one digit before only. So
this will be 105 and the unit will be meter. Unit will be meter. So the distance from the bag to the obstacle is 105 meter. ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्स्टेकल से बैग से ऑब्स्टेकल तक का डिस्टेंस या ऑब्स्टेकल से बैग तक का डिस्टेंस आ गया 105 मीटर। ठीक है, ये इको के लिए फॉर्मूला होता है d = v/t/2। ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इको के कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जब भी इको प्रोड्यूस होता है जहाँ सोर्स ऑफ साउंड है और ये d डिस्टेंस इधर से साउंड जाएगा, d डिस्टेंस फिर रिटर्न आएगा और इस इको को सुनाई देने में अगर t सेकंड का टाइम लगा और अगर इसका स्पीड v है तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d डिस्टेंस ये जो है सोर्स से ऑब्स्टेकल तक साउंड जाने का यानी ये d, फिर d डिस्टेंस रिटर्न आने का तो d + d2d और उसके बाद जो है टाइम t लगा है तो ये आता है 2d अपॉन t v और इसी से जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ना तो v × t और v × t हो जाता है तब d = आ जाता है v × t/2। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एक का आंसर आ गया, इसमें ये पूछा था हाउ फार इज द बैग फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, तो एक आंसर आ गया, आंसर इज 105। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, वेवलेंथ पूछा है। तो हम लोग दूसरा क्या फॉर्मूला जानते हैं, दूसरा फॉर्मूला जानते हैं v = f × लैम्डा और इससे जब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा = v/f, क्योंकि ये f जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो v/f हो जाएगा, लैम्डा यहाँ बचेगा, इसको लिख लिया तो लैम्डा की वैल्यू v/f आ गई। v हमारे क्वेश्चन में गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड एंड f is given 3, इसको हम 30 × 10⁻³ लिखें या 3 × 10⁴ लिखें, यहाँ एक 0 है, इसको कैंसिल करने के लिए हम 30 × 10⁻³ ये 0 से 0 कैंसिल होगा और ये बचेगा कितना, 35 / 3 × 10⁻, ये 10⁻ जो है ना प्लस का 3, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वेवलेंथ यानी लैम्डा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर। अब 3 से 35 में क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, फिर यहाँ पर 3 × 1 = 3 0.2 बचेगा, 3 6 × 18, फिर 3x 6 × 18, ये 6 आता जाएगा और × 10⁻³ जब हम लोग किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कोशिश यही होती है कि जो हमारा नंबर हो 1 और 9 के बीच का हो और डेसिमल पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद लगा हो। इसमें जो डेसिमल पॉइंट दिख रहा है वो 2 डिजिट के बाद दिख रहा है, इसको हमें यहां शिफ्ट करना है लेफ्ट, एक डिजिट पहले करना है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से डिवाइड करेंगे, देन 10 से मल्टीप्लाई। जैसे इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 और 1.1 फिर 6 आ जाएगा, और जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 10⁻³ में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻² आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.1, उसके बाद 6 आएगा, हम उसको राउंडिंग अप करके 7 लिख लेते हैं और ये 10⁻² मीटर आ जाएगा, ये आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझा देते हैं
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अ बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज। एक बैट है और बैट जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैट होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 किलोहर्ट्ज से एबव होती है। तो ये जो बैट्स है 30 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, एमिट कर रहा है। इफ इट्स स्पीड इज 350 मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड जो है जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, उसका स्पीड दे रखा है 350 मीटर पर सेकेंड। Now the bats hear its echo after 0.6 second after emitting the waves. अब जैसे उसने वेव्स को क्या किया, एमिट किया, और वो वेव्स किसी ऑब्स्टेकल से गया, वहां पे स्ट्राइक किया, वहां से फिर रिटर्न आया, तो वेव्स को एमिट करने और वहां से इको सुनाई देने का जो टाइम दे रखा है 0.6 सेकेंड दे रखा है, यानी उतने टाइम में वो बैट्स से ऑब्स्टेकल तक का साउंड जाएगा, वेव्स जाएगा और वहां से रिटर्न भी आएगा। तो इसलिए ये इको का कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे जब फॉर्मूला निकालते हैं तो ये v t/2 आता है, d डिस्टेंस गया, d रिटर्न आया, तो यहाँ पे d प्लस d/t करके तब स्पीड इक्वल टू 2d/t करते हैं, और इसमें से चूंकि d निकालना था तो d इक्वल टू v/t का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है। फिर क्या किया, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो दे दिया 30 किलोहर्ट्ज, लेकिन फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हर्ट्ज। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 30 × 10³ हर्ट्ज लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया इसका स्पीड कितना दिया है, 350 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है इको के लिए 0.6 सेकेंड। इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इको का फॉर्मूला लगाएंगे, d = v/t/2, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करके जब इसको निकालेंगे तो 105 मीटर आ जाएगा। और इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट था कि हमें f मालूम था, v मालूम था, लैम्डा पूछा था, तो लैम्डा ये फॉर्मूला होता v = f लैम्डा या n लैम्डा या न्यू लैम्डा। तो इससे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा v/m, और v की वैल्यू है 350 मीटर पर सेकेंड। f हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं 30.3 हर्ट्ज, और इसको जब कैलकुलेट किया तो 1.17 × 10⁻² मीटर ये वेवलेंथ इसकी वैल्यू आ गई।